Good morning, students. Myself Deepali Harchande. Again, I welcome you all for the political science session. Yesterday, we have started with the 5th chapter, that is Contemporary India, Good Governance. Today, we are going to start with the second part of the lesson number 5. Okay. Yesterday, we have learnt about what is governance, then what is the role of government in citizen administration and how they can play that role. Let me revise it once. What is governance? Governance means what? Governance means the government bodies, various non-state actors. Non-state actors means non-governmental organizations and voluntary organizations. When they come together, it is known as governance. Okay, and these governance play an important and supportive role in public administration. I am repeating again. When government, various non-state actors like non-governmental organizations and voluntary organizations come together, then it comes under in a governance. Now let's start with the next part, that is evolution and meaning. Yes. Yesterday we have learnt about NGOs, then civil society organizations, even legislative, executive and bureaucrats, or this jurisdiction part or judiciary part we have learnt. These are the elements of government system, or it is a structure of government. Now today we are going to start with the globalization and globalization of the world economy. Fine. It comes under the title of evolution and meaning. Now evolution means what? Something new. Something has got change. So several changes took place in the world in 1990s. These changes are including like following. Now कौन कौन से चेंजेस हुए? 1990 तक बहुत सारे चेंजेस हुआ है हमारे सोसाइटी में, हमारे गवर्नमेंट में, अलग अलग देशों में. तो वो क्या क्या इवोल्यूशन, मतलब क्या क्या नया नया चेंजेस हुआ है, वो सब हम अभी देखेंगे. नाउ वेरी फर्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन मीन्स all countries, they come together, they can communicate with each other within seconds through the internet, through the satellites. We can communicate with each other. Means there is a technological revolution also, we can say. And because of technological revolution, the globalization has taken place. The whole world, the whole globe come closer. That is the globalization. Now globalization of the world economy. Now it has influenced the economy also. Globalization has influenced the economy. Means what? The economy structure has got changed. Now trade and communication is done easily. Before that, means previously trade and communication was limited in the boundary of particular country, but now the scope is vast of trade and economy. The transportation, then communication has got changed, the structure has got changed. अभी हम क्या कर सकते हैं? सभी जो देश है, इंटरनेशनल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, ट्रांसनेशनल कंपनीज है, थ्रू दीज कंपनीज वी आर कमिंग टुगेदर, वी आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर. So trade is easy now, communication is easy, and why? Because of globalization. Globalization के वजह से क्या हो रहा है? हम सब एक साथ काम कर रहे हैं. हम सब मतलब it is a fast, we can say fast technology. इसे हम technological revolution भी कह सकते हैं. Now what is there in technological revolution? See, technological revolution in the sector of communication brought in the internet, mobile communications, TV, etc. These developments and the growth of social networking brought in instant connectivity and transparency in the administrative system.
और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम. सो रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ है, हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में. सेकेंड पॉइंट है उसमें, इंटरनेशनल इकोनॉमिक relations has got changed. Then trade and investment become an important economic issues. Now trade and investment. See, we have learned about the free flow economy in the first or second chapter. फ्री फ्लो इकोनॉमी में हमने क्या पढ़ा है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, ट्रांसनेशनल कंपनीज़ है, वो क्या कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन आवर कंट्री एंड वी पीपल मीन्स इंडियन पीपल दे आर इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्रीज. सो ये क्या है, फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस कैपिटल है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम. सो ये किसकी वजह से हुआ है, ये रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी. फाइन. एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, as we have seen the world is come closer, and in this way the multinational company, transnational companies वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अलग अलग देशों में कर रहे हैं. उनका जो हेड ऑफिस है वो एक देश में है और उनके ब्रांचेस अलग अलग देशों में है. ये सब हमने पढ़ा है और इसका इकोनॉमी में बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है. इट इम्पैक्ट लॉट as well as we can call the technological revolution plays an important role. Okay, we have learnt about the consumer food chains like McDonald's, Burger King, Pizza Hut. See, these all are not a Indian companies, they are the foreigners, means the companies, they have their head office in foreign countries or in another country and they have branches in our country. Fine, this is the food chain and this is a pattern of investment we can see. Okay, so here इन्वेस्टमेंट ईजीली हो रहा है. इसका असर कहाँ पे हो रहा है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो चेंज हो रहा है. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिकम एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इशू इन दिस एरा. फाइन. दिस मेड इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज मोर इन्फ्लुएंशियल. इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इंटरनेशनल फंडिंग है वो क्या हो रहा है, वो इन्फ्लुएंस हो रहा है. इंटरनेशनल फंडिंग मीन्स, सी इन द प्रीवियसली ऑल्सो आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल अबाउट मेट्रो. फाइन. द मेट्रो प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन इन आवर इंडिया. सो हु हैव डन फंडिंग, द जापान. ओके, वी हैव taken loan from Japan for the metro, for the they have given us fund, we can say they are financing us, and this is the one example for the international funding. Okay, international means कोई भी कंट्री किसी भी अलग देश को फंड दे सकती है, कर्जा दे सकती है, लोन दे सकती है. हमारा इंडिया, मतलब अभी मोदी जी ने भी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, नेपाल है, भूटान है और अदर अलग अलग जो कंट्रीज़ है, वहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने लोन नहीं कह सकते लेकिन उन्होंने पैसा दिया है. किसके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए. अगर फ्लड सिचुएशन है, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है तो क्या करते हैं लोग, जो देश है वो क्या करते हैं, अलग अलग देशों से उन्हें फंड मिलता है, अलग अलग देशों से उन्हें पैसा मिलता है टू ओवरकम दैट नेचुरल सिचुएशन. अभी चाइना में फ्लड सिचुएशन आया था, वहाँ पे भी बाकी के देशों ने उनको हेल्प की थी. आपको अगर याद हो तो गुजरात में, हमारे इंडिया में गुजरात है, वहाँ पे भूकंप आया था. तो उस टाइम बहुत सारे देशों ने हमें मदद की थी और ये मदद किसके स्वरूप से किया जाता है, ये फंडिंग के, फाइनेंस दिया जाता है, फंड दिया जाता है. यहाँ पे वो लोग मदद करते हैं इस तरह से. नेक्स्ट इज international institution. See, this is the second point, international institutions. Now there is a growing influence of international funding agencies like International Monetary Fund, World Bank, Asian Development Bank, United Nations Development Program, United Nations Environment Programs, then United Nations International Children's Emergency Fund, etc. Means these all are the funding agencies from where we can take money.
for the progress, for the development of our country. If there is a natural calamity, then we can take loan, or we can take uh, uh, money from this banks and institutions, or from that various programs. हम क्या करते हैं, अलग अलग देश है वो कहाँ से पैसा लेते हैं. अगर ये इंटरनेशनल लेवल पे है तो पैसा हम कहाँ से लेते हैं, ये जो बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, देन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यहाँ पे हम डिमांड कर सकते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए है. अगर कुछ कलामिटी आती है, नेचुरल कलामिटी, तो उस टाइम वो ये सब जो लोग हैं, ये फंडिंग करने वाले लोग हैं, डोनर्स है, ये हमें मदद करते हैं. These donors agencies now influence the policies of the third world countries. They wanted reforms in the traditional administrative setup of the countries that were seeking aid. मतलब ये सब यूनाइटेड नेशंस ने एस्टेब्लिश किए हुए एजेंसीज़ है. तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, फंडिंग मिलता है, पैसा मिलता है, मदद मिलती है. तो हमें मतलब सिर्फ इंडिया को नहीं, ये जो सारे वर्ल्ड में जितने कंट्रीज़ है जिन्होंने इस यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, उन सबको ये मदद मिलती है. नाउ नॉन स्टेट एक्टर्स, ये हमने पहले भी पढ़ा है. नॉन स्टेट एक्टर्स मीन्स व्हाट, दे आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. मीन्स दे आर नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. मतलब ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है वो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस है. यहाँ इनका गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं. इनका ये जो एम है, इनका जो गोल है, वो क्या है कि वो गवर्नमेंट में काम नहीं करते हैं, लेकिन वॉलेंटरीली खुद से उनको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने मदद करनी चाहिए, सोसाइटी की मदद करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए. तो इसके लिए ये जो लोग हैं वो काम करते हैं. सो voluntary organizations and non-governmental organizations started to play a greater role in public administration. अभी क्या होता है, इन्होंने उनका काम चालू कर दिया, तो सरकार क्या करती है बाद में, अगर सरकार उनको सराहती है, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि नहीं ये जो लोग काम कर रहे हैं वो भी सही है लोगों के वेलफेयर के लिए, तो क्या करते हैं, सरकार खुद फंड देती है, उनको डोनेशन देती है NGOs को, और वो NGOs ये फंड पे, डोनेशन पे काम करना चालू करती है. नाउ दिस चेंजेस ब्रॉट इन रीथिंकिंग इन अप्रोचेस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सी पेज नंबर 49, आई एम टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 49. ओके, rethinking in approaches to public administration, it was felt that the traditional approaches of public administration would not satisfy the requirement of the citizens. Means जो कुछ स्ट्रक्चर देखा है हमने, स्ट्रक्चर कौन सा है, गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे गवर्नमेंट रन किया जाता है. तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सिर्फ स्ट्रक्चर है वो इतना काफ़ी नहीं है. जो पब्लिक के जो डिमांड है, पब्लिक के जो अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करने के लिए सिर्फ वो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ये नहीं है, पूरा नहीं है. तो वो क्या करते हैं, वो अप्रोच किसको करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को. वहाँ पे लोगों की जो कॉमन सिटीजन्स है उनकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट और नीड्स है वो फुलफिल होती है. This brought in shift from public administration as an approach to governance. Governance, what we have learnt in that governance में हमने क्या देखा, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, मतलब सरकार, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है जो सरकार के नहीं हैं लेकिन लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, एंड वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों मिलकर काम जब करते तो गवर्नेंस बन जाता है. तो अभी क्या है, दिस ब्रॉट इन अ शिफ्ट फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन अप्रोच टू गवर्नेंस. गवर्नेंस अप्रोच इज़ अ ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अभी लोगों का भरोसा किस पे ज़्यादा है, गवर्नमेंट पे नहीं है ज़्यादा. ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, जो लोग खुद से काम कर रहे हैं, जो लोग स्वयं घोषित काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा लोग रखते हैं. फाइन, दिस रिफॉर्म्स सॉट टू रिवैम्प द ट्रेडिशनल archaic elephantine-sized public administration riddled with delays, red tape and corruption. अभी इसके वजह से क्या हुआ है, ये जो रिफॉर्म लोगों ने ही चालू किया है, लोगों का भरोसा सरकार पे नहीं है, सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पे नहीं है, तो लोगों ने क्या किया है, खुद ने ही रिवैम्प करना चालू किया है. रिवैम्प मीन्स टू इम्प्रूव.
किस पे इम्प्रूवमेंट लाना चालू किया है? जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट है, जो हमने देखा है लोकल बॉडी, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, इसके ऊपर ध्यान, मतलब इसको फोकस नहीं करके वो क्या कर रहे हैं, जो हम सुधार सकते हैं गवर्नमेंट में, वो सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्काइक मीन्स व्हाट, विच इज़ हम बोलते हैं ना पुरातन काल से ऐसा है। तो ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो 1947 से है। तो ये कहाँ पे तो बदलाव आना चालू हो गए। एलिफेंटाइन साइज मीन्स बिग, वेरी ह्यूज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत ह्यूज है, तो उसमें बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। रिडल्स विद डिलेज, रेड टेप एंड करप्शन। वी नो ऑल अबाउट द करप्शन। करप्शन तो सभी सरकारी खातों में है, तो ये करप्शन में सुधार लाने की कोशिश करना चालू हो रहा है। वो हम इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब जितना करप्शन कम हो जाए वहाँ वो लोग अभी सोचना शुरू कर दिया है लोगों ने। तो ये सब अभी रिवैम्प हो रहा है। रिवैम्प मीन्स व्हाट, टू इम्प्रूव। करप्शन कम होने के चांसेस है अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो अगर हम उसमें बदलाव लाएंगे तो। Okay, it aimed to replace this old system with responsive, responsible, participative, equitable public administration. Yes, ये हो सकता है, हम रिप्लेस कर सकते। ये जो ट्रेडिशनल हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन कब? जब हम सिस्टम ही बदल दें। जो ओल्ड सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, अगर हम उसमें बदलाव लाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम करप्शन कम करते हैं। तो अभी कौन सा सिस्टम चाहिए नया? जो रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिबल है, देन पार्टिसिपेटिव है, इक्विटेबल है, और ये सब अगर हम ये इंक्लूड करते हैं तो क्या होगा? ये हम क्या करेंगे? नया एक सिस्टम ला सकते हैं हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में। न्यू मॉडल हमें चाहिए। तो न्यू मॉडल कौन सा है? यही हमारा लेसन है, जो है गुड गवर्नेंस। मॉडल का हमारा लेसन का नाम क्या है? गुड गवर्नेंस। फाइन। तो हम ये गुड गवर्नेंस अगर लाते हैं, ये नया मॉडल, नया एक सिस्टम हम अगर लाते हैं, तो हमारा जो ट्रेडिशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो भी बदल जाएगा। फाइन। तो ये जो है व्हाट इज़ सिविल सोसाइटी, इसका एक डेफिनेशन है। ये देखो सिविल सोसाइटी, इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लगा दिया है। Civil society refers to a wide range of organizations. They include community groups, non-governmental organizations, means NGOs, labor unions, indigenous groups, charitable organizations, faith-based organizations, professional associations and foundations, etc. So this is the definition of what is civil society. Civil society में ये सब मैटर करता है, ये सब आस्पेक्ट्स है। सारे यूनियंस है, नॉन गवर्नमेंट, लेबर यूनियन, ये जब सब एक साथ आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सिविल सोसाइटी। नाउ व्हाट वी हैव लर्नड दैट वी वांट अ गुड गवर्नेंस मॉडल। फाइन। द न्यू मॉडल हैज़ बीन evolved. A new model has been put forth by the citizens. Now just let's learn about it कि ये न्यू मॉडल क्या है, कैसे काम करता है। ओके, द न्यू मॉडल इज़ पॉपुलरली called as good governance model. This model also looks at the interlinkage between state government and civil society. स्टेट गवर्नमेंट मतलब हमारा जो अभी स्टेट गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वो और सिविल सोसाइटी, इसमें एक लिंक है, लिंकेज है, ब्रिज है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गुड गवर्नेंस बोलते हैं। दिस मॉडल वांटेड टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन सेंटर्ड एंड नॉट रूल बाउंड। येस, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये जो मॉडल है वो क्या चाहता है? वो क्या चाहता है? टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन सेंटर, मतलब जो लोग हैं, लोगों को जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, लोगों के जैसे डिमांड है, रिक्वायरमेंट से, नीड से, उस हिसाब से ये एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, ना कि सिर्फ रूल है वहाँ पे कि आपने ये भी फॉलो करना है, वो भी फॉलो करना है, ये रूल है, वो रूल है, ये नहीं करना है। तो ये नए जो मॉडल है गुड गवर्नेंस, ये मॉडल का एम क्या है? द गवर्नमेंट सिस्टम शुड बी सिटीजन सेंटर्ड,
शुड नॉट बी रूल बाउंड, मतलब सिर्फ रूल दिए गए वो सब लोगों ने फॉलो करने हैं, सिर्फ इतना ही इसका मीनिंग नहीं है। लोगों को मज़ा भी आना चाहिए, लोगों को सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए कि नहीं हमारा गवर्नेंस बहुत अच्छा है, हमारा गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करता है, हमारे नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरे करते हैं, एम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में ज़्यादा है, ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलता है। आज की अगर आप परिस्थिति देखेंगे तो आज की परिस्थिति में लोग यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं और दूसरी जगह पे दूसरे कंट्रीज़ में काम करने के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है रादर देन आर इंडिया। फाइन। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं जो इंडिया में मिलना चाहिए। लोगों के पास टैलेंट है, लोगों के पास स्किल है, सब कुछ है, क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे उनकी कोई कदर ही नहीं करता। क्योंकि क्या है, यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रिक है। ये जो पूरा जो सिस्टम है ये कुछ फ्यू जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनके हाथ में है, सिर्फ उनको ही पैसा मिलता है, बाकी के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारे कंट्री में। चलो लेट्स गो टुवर्ड्स द गुड गवर्नेंस। ये क्या है गुड गवर्नेंस और ये कैसे काम करता है? फाइन। Good governance is an indeterminate term used in the international development literature to describe how public institutions conduct public affairs and manage the public resources. मतलब क्या है, गुड गवर्नेंस का मॉडल ही क्या है? जो कुछ रिसोर्सेस है, पब्लिक रिसोर्सेस है, पब्लिक अफेयर्स है, वो किसने कंडक्ट करना चाहिए? पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ने। पब्लिक इंस्टीट्यूशन मीन्स व्हाट? यस, आर डेमोक्रेटिक सिस्टम। यस, वी हैव दैट सिस्टम। एवरीथिंग इज रन बाय पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पब्लिक रिसोर्सेस का जो इस्तेमाल करना चाहिए वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। सो गुड गवर्नेंस इज एन indeterminate term used in the international development literature to describe। इंटरनेशनल लेवल पे अभी हमने क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए, पब्लिक रिसोर्सेज को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। गुड गवर्नेंस हैज़ द फीचर्स लाइक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। Efficient government is also transparency in the work government should be adopted by governments, that is RTI is the act for it. yes, अभी हमने कल देखा है अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, देन हमने कल ये भी पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन सिटीजन्स फीडबैक है। ये जो सब है ये एलिमेंट्स है गुड गवर्नेंस के। अकाउंटेबिलिटी मतलब लेट्स टेक द प्रीवियस एग्जांपल। मेट्रो का मैंने एग्जांपल दिया था फर्स्ट पार्ट में। तो मेट्रो का काम हमने चालू किया है, जापान से हमें पैसा मिला है, वो काम कहाँ तक आया है, कितना खर्चा हुआ है अभी तक, वो काम पूरा हुआ है या नहीं, आधा काम तो पूरा हुआ है नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अकाउंट मतलब क्या, हमें चेक रखना है कि इतना काम हुआ है, इतना बाकी है, इतना खर्चा और भी आने वाला है, ये सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे ही लोगों को दिया जाता है जिसका पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट में है, जिसके कोई रिलेशन में है, भाई है, बहन है और कोई रिलेटिव है, उनको ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी के ये नहीं है, एग्जाम्पल्स नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चेक रहना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। तो एफिशिएंट गवर्नमेंट इज़ आल्सो ट्रांसपेरेंसी इन द वर्क गवर्नमेंट। अभी ये ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू चेक ऑन गवर्नमेंट। तो इसके लिए आरटीआई का एक जो ये है एक्ट पास हुआ है, वो एक आरटीआई है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। मतलब गवर्नमेंट में कैसा कामकाज चलता है, कौन कौन सा काम चलता है, इसके लिए हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन ये नया एक्ट पास किया है, वो 2005 में हमने पास किया है। आरटीआई मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो हमें एक अधिकार दिया गया है इन्फॉर्मेशन मिलने का। जो सरकारी कामकाज चलता है, जो गवर्नमेंट का कामकाज चलता है, उसके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। ये एक नया पास हुआ बिल है। ओके, नाउ लेट्स सी द एलिमेंट्स। वेरी फर्स्ट इज गुड गवर्नेंस का एलिमेंट है पार्टिसिपेटरी। सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू
what all are the elements of good governance. Very first is accountable, transparent. It should be accountable, it should be transparent, it should be responsive, equitable and inclusive, effective and efficient, follow the rule, participatory and consensus oriented. फाइन. अभी एक एक हम ले लेंगे, एक एक का मीनिंग हम देखेंगे. नाउ विल स्टार्ट विद द पार्टिसिपेटरी. ओके, यस, पार्टिसिपेटरी वर्ड में ही आपको वो मीनिंग पता चलेगा. पार्टिसिपेटरी मीन्स व्हाट? पार्टिसिपेटरी मीन्स पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए. वी शुड इन्वॉल्व पीपल in the government system, and for that purpose obviously we have that structure, that election is there, direct elections, indirect elections are there. We can directly vote our representative, we can select our representative. So participatory, that element is there in our constitution, it is there in our government also. See, it is one of the most essential aspects of good governance. Effective functioning of any democratic system requires people's participation. It ensures that voices and choices of people are heard. People get an opportunity to participate in the process of decision making and its implementation. Yeah, actually it is very difficult to involve each and every person in that government or in that administration system. It is totally impossible. For that purpose, what kind of system we have? We can choose one representative from our side, means from each and every ward, from each and every area we have one representative. We have corporators, we have ministers. So see, they are the mirror of our feelings, they are the mirror of our इमोशंस ऑल्सो वी कैन से. उनके तरफ से हम क्या करते हैं, काम करवा के लेते हैं. हम उनको इलेक्ट करते हैं, वो गवर्नमेंट बॉडी में वो काम करने चालू करते हैं, मतलब विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा. तो ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं. इनको किसने पार्टिसिपेट करने का राइट दिया है? हमने ही दिया है, हमने ही चूज़ किया है उनको. ओके, हमने ही उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप हमारे जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो समस्याएं है, वो आप वहाँ पे हमारे तरफ से वहाँ पे ये करो, डिस्प्ले करो और वहाँ पे बताओ. तो ये हुआ पार्टिसिपेटरी. सेकंड इज़ रूल ऑफ लॉ. ये क्या है? द रूल ऑफ लॉ इज़ द अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ इन सोसाइटी, स्पेशली व्हेन वीव्ड एज अ कंस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल behavior. The principle whereby all members of a society are considered equal subject to publicly disclosed legal codes and process. लॉ, रूल फॉर लॉ, ये सबके लिए कॉमन है. कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारे यहाँ पे रूल्स दिए हैं, लॉ के हैं. देन कोड ऑफ कंडक्ट दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने. ये सबके लिए क्या है? सेम है. ओके, देन कोर वैल्यूज़ भी दिए हैं, कोर वैल्यूज़ ऑफ गुड गवर्नेंस. द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ आर द गाइडिंग पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें क्या किया है? सेफ गार्ड किया है हमारे जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये रूल ऑफ लॉ में आते हैं. तो हमें सेफ गार्ड किया है. इट इंश्योर्स जस्ट अ फेयर पॉलिटी वेयर राइट्स ऑफ द पीपल आर सेफ गार्डेड. राइट ऑफ द पीपल मीन्स जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो वायलेंट नहीं होने चाहिए. ये सब राइट्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए. राइट्स हमने पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़. यू विल गेट इट इन द net also or in the previous last year's textbook also you will get. Now next is transparency. अभी ट्रांसपेरेंसी मैंने उसके बारे में बोला है, बहुत बोला है. जो द कल्चर ऑफ सीक्रेसी हैज़ बीन challenged by the value of transparency. This enables the people to keep the government under public scrutiny. In India since 2005, RTI means Right to Information Act has been giving the citizen the right to seek information related to the functioning of the government. अगर गवर्नमेंट का जो कुछ फंक्शनिंग है वो अगर मुझे सीखना है, वो मुझे समझना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? RTI के माध्यम से मैं उनको मांगूंगी. तो हम एक चेक रख सकते हैं वेदर द गवर्नमेंट सिस्टम इज़ ट्रांसपेरेंट और नॉट. बहुत बार बोला है, तो हम आगे जाते हैं. देन ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस. नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
रिस्पॉन्सिवनेस मतलब सब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. Responsive government means the leader had a very responsible in their work, the leader who complete their work with short time and they solve all problems of the people and all peoples of their party शुड बी रिस्पॉन्सिबल वर्क. मतलब जो कुछ काम दिया गया है हमने इलेक्ट करने के बाद अगर उनके पास कुछ काम है तो उन्होंने वो टाइम लिमिट में ख़त्म करना चाहिए. वो टाइम लिमिट में ख़त्म नहीं किया तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो वी कैन आस्क फॉर RTI, वी कैन आस्क द इंफॉर्मेशन from RTI Act that why that particular work has not been done within the particular period. अगर एक ब्रिज का काम चल रहा है और वो कंप्लीट नहीं हुआ है विद इन दैट टाइम पीरियड, मतलब 2 years का उन्हें टाइम दिया है और वो टाइम लिमिट में नहीं हुआ तो हमें चेक करना चाहिए. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज वेल एज वो गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड दैट इज़ नोन एज रिस्पॉन्सिवनेस. A huge factor of trust and cooperation are involved in this kind of government. It also helps the citizens to have equal share in various walks of life. Then it also helps to have peace in private and public sector. ये हमारा right ही है कि हमें क्या चाहिए, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में क्या चाहिए, शांति चाहिए. तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि to maintain harmony in the society, and that is known as responsiveness. Now next is consensus oriented. Consensus इसको मराठी में बोलते सार्वनुमते. मतलब सबका डिसीजन लेना चाहिए, सबके ओपिनियन लेने चाहिए और उसके आधार पे ही हमें डिसीजन लेने चाहिए. अभी सबके मतलब क्या है, जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स है, जो कुछ हमने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करके दिए, उनके सब में क्या होना चाहिए, एक हारमोनी चाहिए, उनमें एक तालमेल चाहिए, तभी कोई भी हम डिसीजन ले सकते. तो कंसेंसस ओरिएंटेड मतलब क्या, डिसीजन मेकिंग कंबाइंस मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द ग्रुप विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी. थ्रू दिस प्रोसेस ग्रुप मेंबर्स कैन कम टू बेटर कॉमन सॉल्यूशंस इन अ वे दैट रिस्पेक्ट्स ऑल ऑफ देम. मतलब सब लोगों ने एक साथ आना चाहिए. मतलब जो मीटिंग होती है विधानसभा की है, विधान परिषद की है, लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग है, यहाँ पे क्या होता है, सब जो ग्रुप मेंबर्स है, जो लीडर्स है, जिनको हमने रिप्रेजेंटेटिव कह के भेजा है, तो उन्होंने एक साथ आना चाहिए और जो कुछ प्रॉब्लम्स है, जो कुछ इश्यूज़ है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको क्या करना चाहिए, उन्होंने सॉल्व करना चाहिए और इसमें सबके ओपिनियंस लेने चाहिए. उसको बोलते हैं कंसेंसस ओरिएंटेड. नेक्स्ट है, ये देखो सब लोग एक साथ आए हैं, सब लोग मीटिंग में है, सब अपने अपने व्यू बता रहे हैं, इसको कहते हैं कंसेंसस ओरिएंटेड. और उसके बाद ही कुछ बिल पास होता है, कुछ आर्टिकल पास होता है और प्रोविज़न आते हैं, नए नए रूल्स आते हैं, कुछ अमेंडमेंट होता है. ये सब लोगों के डिसीजन के बाद ही. और उसमें भी ये एक है, अगर 2/3 ऑफ पीपल दे आर एग्री विद दैट बिल, इट विल गेट पास. इफ 2/3% ऑफ पीपल दे आर नॉट एग्री, दैट बिल विल नॉट बी पास्ड. So this is the procedure of making laws. Next is equity and inclusiveness. Yes, equity means what? One should not be impartial. हमें निष्पक्षपणे काम करणे असं म्हणतात ना, निष्पक्षपणाने काम करायचं, त्याला म्हणायचं इक्विटी. अँड इन्क्लूसिवनेस मीन्स कम टुगेदर एंड टू वर्क. सबको एक साथ लेके हमें आगे जाना है. अगर प्रोग्रेस करनी है, हमें अगर डेवलपमेंट करनी है, तो सब लोगों को एक साथ लेना चाहिए, सब सोसाइटी के लोग एक साथ आने चाहिए. अ सोसाइटीज़ वेलबींग डिपेंड्स ensuring that all its members feel that they have a stake in it. No one should feel excluded from the mainstream of society. मतलब पूरे सोसाइटी के जो लोग हैं वो सभी को एक साथ लेके हमें आगे बढ़ना है. This requires all groups, but particularly the most vulnerable have opportunities to improve and or maintain the well-being. मतलब अगर हमें वेलबींग के लिए, वेलफेयर के लिए काम करना है, तो सारे सोसाइटी के लोगों को एक साथ लेके हमें काम करना है, इंक्लूसिव काम करना है. और इक्विटी मीन्स व्हाट? इम्पार्शली हमें ये काम पार्शली कुछ भी काम नहीं करना है.
और ये भी किस में है, गुड गवर्नेंस के अंडर आता है। कोई सगा नहीं, कोई हमारा रिलेटिव नहीं, ऐसे बोल के काम करना चाहिए। इक्विटी का और एक मीनिंग है इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीवन। सारे लोगों को क्या देना है, हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना है। फाइन, वो हो गया इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। नेक्स्ट इज सी, इक्विटी मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू एवरीवन और impartiality. Next is effectiveness and efficiency. Now let's see the effectiveness and efficiency. Good governance means that processes and institutions produce results that meet the needs of society while making the best use of resources at their disposal. The concept of efficiency in the context of good governance also covers the sustainable use of natural resources and the protection of the environment. Now ये क्या है effectiveness and efficiency? Effectiveness means what? इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए। फाइन, सो ये क्या है, जो सोसाइटी में हम जो नेचुरल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, सी while making the best use of resources at their disposal, we should take care about it. What? We need to take care of natural resources as well as we need to take care of human resources also. Okay. For example, अगर हमें सोसाइटी की नीड्स पूरी करनी है, इफ़ वी वांट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ सोसाइटी, वी हैव टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेस. फाइन, फॉर एग्जांपल, टेक वन डेली एग्जांपल that for cooking we use the cooking gas. Fine, and from where we get that cooking gas, it's a natural resource. Fine, so we have to depend, we are totally depend on that natural gas for the cooking purposes. Fine, so while using that natural resources and while disposing it, we should take care of their use. Means हमें जो इस्तेमाल करना है वो सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि खुद के लिए सिर्फ इस्तेमाल करना है, ये पूरे वर्ल्ड में जितने जितने लोग हैं वो सब कुकिंग गैस का इस्तेमाल करते, तो वो हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके वजह से क्या हुआ, उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, उसका जो एफिशिएंसी है, मतलब आज अगर मैं बहुत सारा कुकिंग गैस इस्तेमाल करती और मैं बहुत सारा पानी वेस्ट करती हूँ और मैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, माइंस है, वो मैं वेस्ट करती हूँ, तो वो क्या होगा, जो हमारी आगे की जो जनरेशन है उनको वो नहीं मिलेगा। फाइन, तो इसका हमें ध्यान देना चाहिए। इफ़ेक्टिवनेस मतलब क्या, जो हम नेचुरल रिसोर्सेस इस्तेमाल करते उसका इफ़ेक्टिव यूज़ होना चाहिए, मतलब थोड़ा ही यूज़ करो लेकिन अच्छे तरह से यूज़ करो। उसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी हम बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने नेचुरल रिसोर्सेस जो है उसका हमें ध्यान रखना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेस एंड फाइनली वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। एफिशिएंटली इस्तेमाल करना चाहिए, इफ़ेक्टिव यूज़ करना चाहिए। मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस्तेमाल कर सकते विथ अ डिफरेंट मैनर। मतलब खर्चा कम होना चाहिए, मतलब वो जो रिसोर्स है वो कम खर्च होना चाहिए, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। इसके तरफ हमने ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अकाउंटेबिलिटी. नाउ एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू इट्स सिटीजन्स. अकाउंटेबल गवर्नमेंट मतलब क्या, गवर्नमेंट क्या काम करता है, कितना काम करता है, इस पे हमें क्या करना है, चेक करना है, चेक रखना है। सी, एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू इट्स सिटीजन्स. यस, इन्होंने, ये गवर्नमेंट ने आंसर देने हैं लोगों को, जो कॉमन लोग हैं, हम जो हमारे जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारे इश्यूज़ है वो उन्होंने सॉल्व करने हैं और उसके आंसर्स भी उन्होंने हमें देना चाहिए, क्योंकि नहीं हो रहा है ये काम. फॉर एग्ज़ाम्पल, nowadays the new issue has got arise that reservation of Maratha. Fine, so still it is pending and the government, they are answerable for this, for the citizens of India. Fine, तो गवर्नमेंट क्या है, इसके लिए आंसरेबल है कि क्यों नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, क्यों रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है.
ये एक हो गया। ये अकाउंटेबिलिटी का मैं हमेशा ये एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेट्रो का एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जो अभी पूना में जो इसका काम चल रहा है, बीआरटी का काम चल रहा है, तो क्या है, ये अकाउंटेबिलिटी है। मतलब सिटीजन्स को उन्होंने वो क्या क्या डिसीजंस लेते हैं, वो क्या क्या एक्शंस लेते हैं गवर्नमेंट, वो सब बताना चाहिए। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। सी, एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू इट्स सिटीजन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजंस इट मेक्स ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन्स। मतलब हम लोगों ने उनको अथॉरिटी दिए है कि वो अलग अलग डिसीजंस ले सकते। Government accountability means that public officials elected have an obligation to explain their decisions and actions to the citizens. अभी ये जो ऑफिशियल्स है उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने हर एक एक्शन का उन्होंने जवाब देना चाहिए सिटीजन्स को। ये देखो, हमारे पूना में बीआरटी आई, बीआरटी के लिए वो जो ये थे बस स्टॉप्स थे वो तोड़े और बीच में बीआरटी चालू किया, उसके ऊपर करोड़ों का खर्चा किया, नए नए बस स्टॉप्स बांधे गए, अभी फिर से बीआरटी बंद किया। बीआरटी का जो रूट है वो पूरा उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। कई जगह पे बस स्टॉप बांधे लेकिन वहाँ पे बसेस ही नहीं जा पा रही। ये क्या है, ये कौन मांगेगा इनको सवाल, ये कौन पूछेगा सवाल, ये कौन मांगेगा जवाब। फाइन। तो ये सब ये है अकाउंटेबिलिटी में आती है। ये सब मैंने सिर्फ पूना का एग्जांपल दिया। ऐसे तो बहुत सारे काम चलते हैं। ब्रिज बनाने चालू किए हैं, वो ब्रिज 6-7 साल 8 साल 10 साल वो बनते ही नहीं है, तो कोई पूछता ही नहीं है। और इसके वजह से ये जो ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो लोग काम करते, उनको अच्छा है कि कोई पूछता ही नहीं है। फाइन। तो ये डिसीजन, ये एक्शन जो कुछ लिया जाता है वो हम तक, मतलब सिटीजन्स के पास पहुंचने चाहिए। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। सो स्टूडेंट्स विल स्टॉप हियर and in the third part we'll start with the initiatives for good governance and citizen centering administration in India. So I'm going to end with this session. Chalo, bye bye, thank you and take care.